Hi guys, welcome back to my channel and today we are going to solve question number 1755 closest subsequent sum. So सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. तो you want to choose a subsequence of nums. So subsequence of nums मतलब subset of nums such that the sum of its elements is closest possible to goal. तो हमें वो सबसेट का सम चाहिए जो कि गोल जो एक इंटीजर वेरिएबल है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसकी क्लोजेस्ट पॉसिबल है. कैसे फिगर आउट करेंगे क्लोजेस्ट पॉसिबल है? द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ सम माइनस गोल या गोल माइनस सम शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल. That is the sum of the sequence element is sum and you want to minimize the absolute difference of sum and goal. हमें ये minimum possible absolute difference को return करना है. For example, if we see this, तो अगर हम वो सबसेट लें जिसके अंदर आता है 5, जिसके अंदर आता है इसका पूरा सबसेट अगर हम लें तो 5 माइनस 7 प्लस 3 प्लस 5 द वैल्यू 6 एंड 6 माइनस 6 इज जीरो. क्या इससे छोटा हो सकता है? एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तो जीरो इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, इसलिए इसमें जीरो रिटर्न कर दिया है. तो यही हमें फिक्स करना है. तो क्वेश्चन पढ़ते ही हमें लगेगा कि ये डीपी रिलेटेड रिकर्सिव क्वेश्चन है बिकॉज how many what is the count of the total subsets of a array of size n? It is 2 raised to power n. तो अगर हम 2 raised to power n सारे सबसेट्स को एक्सप्लोर करते हैं, उनके सम फिगर आउट कर लेते हैं एंड वी कीप अ ट्रैक ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ सम माइनस गोल बिकॉज दिस गोल इज डिटर्मिनिस्टिक, सम इज गोइंग टू चेंज. अगर इसकी वैल्यू हम ट्रैक कर लेते हैं, द मिनिमम वैल्यू वी रिटर्न, then this is one of the possible solutions. But what is the time complexity of the solution? It is 2 raised to power n because this is going to be a recursive solution and subset के solutions are based on the pattern which is inclusive include exclude principle. मतलब एक बार सबसेट में उसको इंक्लूड कर लेंगे इंडेक्स को और एक बार एक्सक्लूड कर देंगे, उससे हमें सारे सबसेट के सम आ जाएंगे. हम सम माइनस गोल का मिनिमम वैल्यू को ट्रैक कर लेंगे. द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज 2 raised to power n. बट यहाँ पे इफ़ यू सी इन द कॉन्स्ट्रेंट्स n ranges from 1 to 40. So 2 raised to power n becomes 2 raised to power 40 which is greater than 10 raised to power 8 because this is 2 raised to power 8 into 5 raised to power 8. So this is much greater than 10 raised to power 8. So this is going to give a TLE. Can we memoize this recursive solution? No, because there are no overlapping subproblems. Memoization is only helpful when there is overlapping subproblem, but 2 raised to power n is a total number of subsets and we have to figure out all the subsets in order to figure out the minimum absolute difference between the subset sum minus goal. तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इसको मेमोराइज करना क्योंकि सारे सबसेट्स को तो हमें एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा बेस्ट केस सिनेरियो में भी. तो हम यहाँ पे लगाने वाले एक ट्रिक एंड दिस पैटर्न इज कॉल्ड मैन इन द मिडल, जो आज हम सीखने वाले हैं, इस क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. मैन इन द मिडल. तो ये हम कैसे करते हैं? अगर इसके अंदर हम ध्यान से देखें एक पैटर्न, तो 2 raised to power n because this is 2 raised to power 40 and this is greater than 10 raised to power 8 which is the number of operations allowed in 1 second and therefore this gives a TLE. But what if we do 2 raised to power n by 2? This becomes 2 raised to power 20 and this is within the limit of 10 raised to power 8. This is not going to give TLE and therefore what we can do, यहाँ से आपको हिंट आया होगा कि n by 2 मतलब हम पूरे नम्स एरे को एक बार में प्रोसेस ना करके दो में डिवाइड कर दें. जैसे ही दो में डिवाइड करेंगे तो एक साइड n by 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे, एक साइड n by 2 आ जाएंगे. इफ़ n इज़ इवन, अगर n इज़ ऑड तो यहाँ पे या यहाँ पे आप वो एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर सकते हो इधर ऑन द लेफ्ट पार्टीशन और ऑन द राइट पार्टीशन. This man in the middle question, man in the middle attack, this pattern is very similar to one of the questions that you have done in the past which is very famous, count inversions. This is a lead code hard question and this is a prerequisite before solving this question. तो man in the middle में हम क्या करते हैं, हमारे पास नम सारे दिया होता है, it is of size n. हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं which is left partition and right partition and both have n by 2 elements. Now total subset sum of the complete array is left sum plus right sum. This has to be the absolute difference of this total minus goal has to be minimized. तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट के all possible subset sums निकाल लेंगे, तो 2 raised to power n by 2 एंड राइट के सारे पॉसिबल सबसेट सम निकालेंगे 2 raised to power n by 2. अब हम क्या करने वाले हैं, लेफ्ट और राइट के सम को एग्रीगेट करने वाले हैं. काउंट इन्वर्जन्स में भी हम सेम करते थे, हम लेफ्ट राइट पे रिकर्सिव कॉल करते थे, उन दोनों को सॉर्ट करके ले आते थे और उन दोनों के सम को एग्रीगेट करते थे और उनमें इन्वर्जन्स फिगर आउट करते थे. वैसे हम यहाँ करने वाले हैं, बस
हम अगर क्या करेंगे, यहाँ से हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, 2n/2 एलिमेंट्स आ गए, लेट से x हमने उठाया, इटरेट करके सिंगल इटरेशन पे उठाया, तो जैसे ही x उठाया तो x प्लस लेट से यहाँ से हमने y उठाया, दिस y इज अननोन, दिस सम शुड बी लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू गोल, दिस शुड बी एज क्लोज एज गोल। तो y की वैल्यू क्या आएगी, गोल माइनस x। ये अगर हमने राइट सम में से फिगर आउट कर लिया कि कौन सी वैल्यू इसके सबसे नज़दीक है, तो हम फिगर आउट कर लेंगे कि जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है गोल और सम का वो कैसे मिनिमाइज हो सकता है। अगर हमने यहाँ पे ये वैल्यू फिगर आउट करने गए तो क्योंकि ये सॉर्टेड नहीं है, दिस इज नॉट सॉर्टेड, वी नॉट सॉर्टेड इट, तो दिस इज गोइंग टू टेक ओ ऑफ n/2 टाइम, दिस इज अगेन गोइंग टू गिव TLE। तो यहाँ पे हम एक ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं विच इज़ टू सॉर्ट इट एंड यूज बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च जैसे ही हम करेंगे तो बाइनरी सर्च के अंदर 2 ऑप्शंस, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये हम LIS का क्वेश्चन अगर आपने किया है बाइनरी सर्च से तो उसमें भी हमने यूज़ किया हुआ है। तो लोअर बाउंड इज ये वो एलिमेंट देता है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू द गिवन वैल्यू, एंड अपर बाउंड गिव्स दैट वैल्यू विच इज ग्रेटर देन x, बट देर इज अ प्री रिक्विजिट फॉर अप्लाइंग अपर बाउंड और लोअर बाउंड दैट द एरे शुड बी सॉर्टेड। अगर एरे सॉर्टेड है तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकाल लाएगा, upper bound gives the value which is greater than x, this is just greater than equal to x. How does this work? Internally it works on binary search, we can easily implement it, but this is C++ STL functions which are provided which we will be using. तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू हम बाइनरी सर्च से निकाल लाएंगे, लोअर बाउंड या अपर बाउंड, वी कैन यूज एनी, इट विल वर्क इन दिस क्वेश्चन। एंड उसके बाद हम ट्रैक रख लेंगे मिनिमम वैल्यू का। अगेन मैन इन द मिडल इज जस्ट अ ट्रिक ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन विद इन द टाइम लिमिट, बिकॉज इट 2n को ये 2n/2 की कॉम्प्लेक्सिटी में डिवाइड कर देता है एंड इट यूजेस बाइनरी सर्च। तो ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छी ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, थोड़ा ब्रूट फोर्स टाइप है ये, पर इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ फिक्सिंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। एंड अगेन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, आई डोंट थिंक सो ये आपके इंटरव्यू में पूछा जाएगा, बट मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चन आर ओनली लीड कोड हार्ड एंड दिस इज़ अ लीड कोड हार्ड पैटर्न ओनली, लीड कोड मीडियम में आपको ये पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा। तो अब करते हैं इसको इम्प्लीमेंट करते हुए हमें और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एक वेक्टर लेफ्ट बनाया और एक वेक्टर राइट बनाया, तो हम क्या करने वाले हैं, हम अपने नम्स को 2 पार्टीशंस में डिवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द साइज ऑफ नम्स विच इज़ n, एंड पार्टीशन कैसे होगी n/2 से, ठीक है। सबसे पहले 0 से लेके मिड तक हम पॉपुलेट किस में कर लेंगे, लेफ्ट में। सो लेफ्ट डॉट पुश बैक नम्स i, एंड उसके बाद हम पॉपुलेट करने वाले हैं मिड से लेके n तक किस में, राइट पार्टीशन में। सो राइट डॉट पुश बैक नम्स ऑफ i, ठीक है। तो हमने राइट और लेफ्ट को पॉपुलेट कर लिया, नम्स को 2 पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, दोनों के सबसेट सम्स निकाल के लेके आने हैं। तो वेक्टर इंट न्यू वेक्टर बनाते हैं फॉर लेफ्ट सम्स, दीज आर ऑल द सबसेट सम्स, एंड वेक्टर इंट राइट सम्स। एक फंक्शन बनाते हैं पॉपुलेट सबसेट सम्स विच विल सेंड द लेफ्ट सम राइट सम, एंड ये सेम फंक्शन यूज करके हम राइट सम को भी पॉपुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट दे देते हैं, दिस विल गिव द राइट सम। अब इसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इट विल नॉट बी 2n, इट विल बी 2n/2, बिकॉज लेफ्ट और राइट की मैक्सिमम साइज इज ओनली n/2 एंड राइट कैन बी n/2 + 1 इन केस इट इज ऑड साइज्ड। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक और चीज़ देनी पड़ेगी, द इंडेक्स एंड द सम। इस फंक्शन को जल्दी से हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सो दिस फंक्शन विच इज़ void populate सबसेट, कॉपी कर लेते हैं, and this is a vector of int. Also this is my suggestion to always use by reference if your array is not going to get changed, always send by reference, नहीं तो memory limit exceed आता है बहुत सारे questions पे। int index and this is the current sum। अगेन यहाँ पे कोई भी पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन मत करना, बिकॉज मेमोराइजेशन नहीं करने वाले, सबसेट के क्वेश्चन में मेमोराइजेशन नहीं करते हैं, क्योंकि 2n देर इज़ नो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, सारे सबसेट्स को एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। दिस इज वेक्टर ऑफ इंट एरे सम जो हम पॉपुलेट करके लेके आएंगे, सो दिस हैज़ टू बी बाय रेफरेंस ओनली, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे ही हमारा इंडेक्स रीचेस व्हाट एरे डॉट साइज, मतलब हमने हर एलिमेंट पे डिसीजन ले लिया वेदर वी कैन इंक्लूड इट और एक्सक्लूड इट। तो हम करने वाले हैं एरे सम के अंदर पुश बैक
हमारा करंट सम जो भी अभी बन के आया, एंड देन वी विल रिटर्न बिकॉज दिस इज द बेस केस. उसके बाद हम एक बार करेंगे इंक्लूड विच इज पॉपुलेट सबसेट एरे इंडेक्स प्लस वन. इंक्लूड करने के लिए सम के अंदर एरे ऑफ इंडेक्स को इंक्लूड करेंगे, एंड दिस इज द एरे सम. एंड एक बार हम करेंगे एक्सक्लूड, तो इस सेम रिकर्सिव कॉल को कॉपी कर लेते हैं एंड द सिग्नेचर रिमेन्स द सेम एक्सेप्ट कि सम में हम उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं. तो दिस इज एक्सक्लूड कॉल. हमारा फंक्शन बन चुका है. अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि हम बाइनरी सर्च को यहाँ पे ऑप्टिमाइज करके बाइनरी सर्च यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि राइट में पूरा इटरेट करना पड़ गया, तो ओ ऑफ 2n/n/2 कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी सिंगल सर्च की. तो हम इसको सॉर्ट कर लेंगे राइट को. तो राइट सम डॉट बिगिन एंड राइट सम डॉट एंड हमने सॉर्ट कर लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में. अब हम बाइनरी सर्च यूज़ कर सकते हैं. बाइनरी सर्च में वी कैन आइदर यूज़ अपर बाउंड और लोअर बाउंड. वाई आप टेस्ट केसेस को फिगर आउट करके देख सकते हैं. अब हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई स्टार्ट फ्रॉम 0 पूरी लेफ्ट सम पे इटरेट करने वाले हैं. एंड यहाँ पे है मेन कॉन्सेप्ट. ऑल्सो हम एक ट्रैक रख लेते हैं मिनिमम आंसर का, इंट मिनिमम आंसर विच इज़ इनिशियली इंट मैक्स. रिटर्न क्या करेंगे, मिनिमम आंसर. तो अब हमें बस इसको फिगर आउट करना है लॉजिक को. अब हमारा लेफ्ट सम क्या है, लेफ्ट सम ऑफ आई. तो हमारा वैल्यू टू बी फाउंड क्या है, वैल्यू टू बी फाउंड इट इज गोल माइनस लेफ्ट सम ऑफ आई. ये राइट हो गया है ना. इसका निकाल के लेके आएंगे इटरेटर. तो ऑटो इटरेटर इज we are using lower bound of what, right sum dot begin and right sum dot end. वैल्यू कौन सी फिगर आउट करनी है, किसकी लोअर बाउंड फिगर आउट करनी है, वैल्यू टू बी फाउंड की. ठीक है. अगर ये वैल्यू इज नॉट इक्वल टू राइट सम डॉट एंड, मतलब ये वैल्यू मिल गई है. इटरेटर अगर एंड पे है मतलब ये वैल्यू मिली नहीं है, कोई लोअर बाउंड नहीं मिला है. ऑल वैल्यूज आर ग्रेटर, ऑल वैल्यूज आर स्मॉलर. ओके, कोई भी ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है वैल्यू. अगर मिल गई है तो हम क्या करेंगे, मिन आंसर को अपडेट कर देंगे. कैसे अपडेट करेंगे, मिन आंसर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मिनिमम आंसर एंड द एब्सोल्यूट ऑफ गोल माइनस व्हाट इज द सम, इट इज लेफ्ट सम आई एंड द इटरेटर की वैल्यू कैसे डी रेफरेंस करेंगे, स्टार आई. ओके. अब इसमें एक और यूज केस हमने छोड़ा है कि अगर द वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स से आंसर आ रहा है, बिकॉज दिस इज एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट मतलब अगर वो वैल्यू बड़ी होगी तो भी हमें कंपेयर करनी है, छोटी होगी तो भी हमें कंपेयर करनी है. तो एक बार छोटी कंपेयर करने के लिए आई टी माइनस माइनस करके एक प्रीवियस वैल्यू को भी कंपेयर करेंगे, क्योंकि अगर हमने सिर्फ ये केस लगाया तो कुछ एज केसेस उसमें फंसने वाले हैं. और ये आई टी माइनस माइनस करने वाले हैं, मतलब आई टी हमारा राइट सम के बिगिन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये यहाँ पे एक एरर आएगा, डी रेफरेंस एरर, क्योंकि पॉइंटर बिगिन से पहले वाले वैल्यू को एक्सेस करने का ट्राई करेगा विच इज़ नॉट बीन इनिशलाइज्ड. तो this should work. Let's see, maybe there is some mistake. So okay, it should be IT and not I because that is the name of the iterator. So this has worked. Let's try to submit this solution. So this worked. I hope guys this was helpful. एक बार दोबारा बता देती हूँ. Man in the middle क्यों है, क्योंकि 2 raised to power n exceeded the time limit, so we have divided the problem in 2 halves so that 2 raised to power n/2 is within the time limit which is 2 raised to power 20 which is less than 10 raised to power 8. So लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर लिया है, उन दोनों के हमने इंडिविजुअली सबसेट्स निकाल के ले आए हैं. लेफ्ट और राइट को कॉम्बिनेशन बनाने का ट्राई किया है. लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू गोल, लेस देन इक्वल टू गोल. तो y की x प्लस वाई, तो y की वैल्यू क्या आएगी, गोल माइनस एक्स. उसको हमने लोअर बाउंड से कर लिया. लोअर बाउंड के लिए हमें एरे सॉर्टेड होना चाहिए था, हमने पहले एरे को सॉर्ट कर लिया था. दोनों वैल्यूज को कंपेयर करके मिनिमम आंसर को स्टोर कर लिया. दिस इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्टिमाइजेशन बट दिस इज अ ट्रिक टू सॉल्व इट विद इन द टाइम लिमिट एंड दिस इज काइंड ऑफ ब्रूट फोर्स ऑल्सो. बहुत अच्छा, मतलब दिस इज नॉट लाइक काउंट इन्वर्जन वेरी ऑप्टिमल बट दिस इज अ गुड ऑप्टिमल सोल्यूशन. थैंक यू गाइज, बाय.